Next are function of pollen tube. There are two main functions. First is it is absorptive, glandular and secretory in nature. And secretory. What is the meaning of absorptive? It absorbs the nutrient which are present in the path because it has to travel through the style. Style is the part of carpel or pistil, that is the individual part of gynoecium. Second, it is glandular and secretory. As it has to travel through this style, अगर स्टाइल सॉलिड है तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सक्रीट करेगी और साथ साथ ये पैक्टिनेज सक्रीट करेगी, प्रोटीएजेस सक्रीट करेगी, जो कि पाथ क्रिएट करेंगे सो दैट इट कैन ट्रेवल. Then germination of pollen tube, it depend on the auxin as well as it also depend on the boron. Boron is very essential element for the germination of pollen tube. It may also release some hormone. Then movement of pollen tube, it is called chemotropic movement because it moves due to presence of chemical. Secondly, if we talk about the pollen tube as the male gamete, they are non-motile. Pollen tube is only the mean to carry the male gamete to the egg that is present in embryo sac. Next topic is gynoecium. Gynoecium, it is the female reproductive part. Individual part of gynoecium is called carpel or pistil. According to number of carpel present, it may be called monocarpellary, bicarpellary or polycarpellary. That depend on the number of carpel. Then in some plants, some flower, carpel may be united. They are joined. Then we use the term syncarpus. Syncarpus means joint carpel. As you have seen in case of hibiscus plant, hibiscus के फ्लावर में आपने देखा है यहाँ 5 स्टिग्मा होते हैं और अगर हम नीचे ओवरी देखते हैं, ओवरी केवल एक ही होती है, तो हम इसको कहते हैं पेंटाकार्पलरी एंड सिनकार्पस. अगर पॉपी के प्लांट की बात करें उसमें भी सिनकार्पस होगी. फिर अगर कार्पल दैट इज नॉट यूनाइटेड, इफ इट इज नॉट यूनाइटेड, it is called apocarpus. Apocarpus means free. It is found in Micaelia. It is also found in oleander. Then what are the part of carpel? Carpel is divided into 3 parts. The lowermost portion, that is swollen portion, that is called ovary, and this long portion it is called style, and this part that is the landing platform for the pollen grain. और एक बात और पढ़ेंगे आप इसमें, compatible pollen grain. Compatible pollen grain means which can germinate on the stigma. Why the pollen grain is compatible? Due to pollen pistil interaction. जो पर्टिकुलर स्टिग्मा है वो अपने पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है और ये पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, अगर हम पोलन ग्रेन में बात करें, दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम पर्टिकुलर एंजाइम्स. दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म. लैंड तो सभी पोलन ग्रेन को करने देगा क्योंकि एयर से पोलन ग्रेन आ रहे हैं, सभी यहाँ लैंड होंगे. जर्मिनेट केवल उन्हीं को करने देगा विच आर कंपेटिबल. Then this is the path of pollen tube. Pollen tube इस पाथ को कवर करने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सक्रीट करती है, साथ साथ सक्रीट करती है प्रोटीएजेस.
अगर ये सॉलिड है ताकि उसको अपना पाथ मिलता रहे। फिर अगर हम ओवरी की बात करते हैं, इन द ओवरी आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल्स। देन व्हाट आर दीज ओव्यूल? ओव्यूल में कुछ सेल्स होंगी विच आर कॉल्ड न्यूसेलर सेल। इन न्यूसेलर सेल में से कोई एक या दो जर्मिनेट करती है, या फिर हम कहेंगे ग्रो करती है, डिफ्रेंशिएट करती है टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। If we talk about the ovule, after fertilization, ovule get changed into seed. तो आप किसी फ्रूट में जितने सीड देख रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? दे रिप्रेजेंट द ओव्यूल। अगर हम पपाया की बात करें, पपाया को आप ओपन करते हैं, उसमें ब्लैक कलर के सीड प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब वो फर्टिलाइज्ड हैं। उन ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो चुकी, फिर उसमें आप देखते हैं कई जगह वाइट ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये वाइट वाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये ओव्यूल वो हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। +1 में आपने पढ़ा भी है कि जो ओव्यूल हैं दे आर अटैच्ड टू द ओवरी विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। सेकेंड यहाँ जरूरी है, जो ओवरी है उसके हम चैम्बर की बात करेंगे। चैम्बर को हम बोलते हैं लोक्यूल। ओवरी में भी यूनिलोकुलर, ओवरी में भी बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, दैट इज अबाउट द लोक्यूल। बहुत सिंपल सा है। आप मटर को छीलते हैं, हम देखते हैं उसमें कोई पार्टीशन नहीं है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिलोकुलर ओवरी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।